Next, we have with us Tejas Yadav sir. He will be briefing us about the various aspects of networking. He is the founder, director, and CEO of the company iTechnophonic Systems and Technical Services Private Limited. He has an experience of 7 years in the field of business development, research and development, networking, and infrastructure management. He is a self-made entrepreneur and is also skilled in various programming languages. So, without any further ado, I'd like to invite Tejas sir to take over today's session. Thank you. Good evening, everybody. Good evening. All are comfortable with the English in this, or is there any preferable language? Hello. No, sir, whichever you find it. Yes, sir. Okay. No. So this is all about me. I am a founder and director of the my company, iTechnophonic Systems and Technical Services. Uh, I am work as a motivational speaker as well, and I am an influencer as well. I just wanted to be a vision for the young generation and new students like you. Uh, okay, I am a friend for your career path. Again, the question is for all of you is why you choose the IT? So just a matter, sorry for interrupting. So, can you just turn off the option for annotate? Sorry? Annotate option, that doodle option. Achha, So no one can like doodle anything. Oh, perfect. Okay, done. Yeah. Yeah, thank you very much. Sir. So the question is for all of you is why information technology? Anybody? See guys, this is not a practical or a lecture kind of a thing. I just give you an idea and as well as a career path in the networking and what is the use of it. And there is one OSI model which is useful to understand what is the networking actually. So please be interactive so that accordingly I can guide you and help you out for the networking. Okay, no problem. So I'll let you know, but many of students asking, telling कि sir हमें payment अच्छा मिलता है, ये इंडस्ट्री वो दिमाग से निकाल दो. IT फील्ड में अगर जब आपको काम करना, कुछ चीजें है वो चीजें आपको बेसिक लेवल से या हाई एंड लेवल तक पढ़नी है, तब जाके आप एक्सपर्ट बनते हो. आगे जाके आपको उस मतलब उसमें एक चार्ट है जिसमें आपके करियर किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज in our IT, there are only 5 sections majorly used. First is server, then software development, again database, networking, and security. So we are going to cover networking in this presentation. All are audible. Sorry, everybody is listening to me, right? Because it's quite. Yes, sir. Okay. So the networking is nothing but the OSI model, which is the core of networking. Without this OSI model, your network will never ever work. Okay. So these are the layers. These are the main 7 layers which is used in the networking. If you don't know about this,
दिस 7 लेयर इफ यू मीन आप अगर इसके ऊपर ईच एंड एवरी लेयर पे अगर आप काम नहीं करोगे तो यू विल नेवर वर्क इन नेटवर्किंग फील्ड। आपको नेटवर्किंग समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज हर हर एक लेयर का एक इम्पोर्टेंट है उसके अंदर इस नेटवर्किंग फील्ड में, ठीक है। तो देयर आर 7 लेयर्स। फर्स्ट इज फिजिकल, देन डेटा लिंक लेयर, then after network, then transport, then session, presentation and application. OSI layer is introduced in 1984 by ISO standard. This is the actual graphical image of OSI model, जहाँ पे फिजिकल लेयर माने आपके जितने भी मीडियम्स है, जैसे कि केबल हो गया या फिर वायरलेस मीन्स एयर इज योर मीडियम। जो वाईफाई कनेक्टिविटी होता है ना, विच इज कम्युनिकेट थ्रू दी एयर, ओके। सो लाइक दीज आर केबल कनेक्टर्स, दीज आर कम अंडर द फिजिकल। विदाउट दिस लेयर दो कंप्यूटर कभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम लगता है, या तो एयर होता है, केबल्स होते हैं, देयर आर मेनी कॉपर वायर्स आर देयर, ओके। देन आफ्टर आता है आपका डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस कभी सुना है आपने? मैक एड्रेस या फिर राउटर। सो राउटर वाला जो पोजीशन है, बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। नेटवर्किंग देखने जाओगे तो बहुत वास्ट है। उसका करियर पाथ जब आपको दिखाऊंगा तो आपको यू विल गेट एन आइडिया कि कितना वास्ट है और आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है। सेकंड, physical address, which is your MAC address. The standard of this Ethernet, this physical address is 802.11. ये स्टैंडर्ड यूज करके इथरनेट का जो भी कम्युनिकेशन का जो पोर्ट या जो लैन पोर्ट होता है हर कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो ये जो फिजिकल मैक एड्रेस या जो पोर्ट बनाया जाता है, ये 802.11 ये स्टैंडर्ड को कंसिडर करके बनाया जाता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, इंडस्ट्री में कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हैं तो उनको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज ये हमारे जैसे कोई भी आके इसको नहीं बना सकता है। उसका एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है, वो ISO स्टैंडर्ड बोलते हैं उसके लिए। फिर एक नेटवर्किंग मतलब IP एड्रेसेस जो असाइन किए जाते हैं, हमें जो स्टैटिक IPs मिलते हैं, उसके लिए एक आईना करके एक अथॉरिटी है जो ये सारी चीजों के लिए टेक केयर करती है। आपको और एक चीज बताता हूँ, नेटवर्किंग में अपॉर्चुनिटी क्यों है वो भी बता देता हूँ। बिकॉज आने वाले टाइम में वी आर कम्युनिकेटिंग ओवर IPv4 वर्जन network right now, but it is in a coming few years, like after 4 years, 5 years, or maybe before that, we all our network is migrate to IPv6. So when it converted to IPv6, it's very difficult to manage, because IPv6 is hexadecimal communication. उसमें आपको hexadecimal में ही IP एड्रेसेस या जो भी है उनके टेक्निक सेम रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन के टेक्निक्स आर सेम, बट द थिंग इज कि उनका जो कम्युनिकेशन का जो या फिर IP एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में रहेगा। अभी इसमें है क्या बोलते हैं IPv4 में, विच इज इन डेसिमल फॉर्मेट, तो उसके ऑक्टेट चेंज हो जाएंगे। बहुत मतलब IP एड्रेस के ऑक्टेट चेंज हो जाएंगे। होम IP एड्रेस की रेंज जब डिफाइन होगी, कोई भी आप जब नेटवर्क डिजाइन करते हो, फॉर एन एग्जांपल एक 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, उसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं रहता कि हाँ चलो राउटर लगा दिए, स्विचेस लगा दिए, इंटरनेट कनेक्शन कर दिया, केबल कनेक्शन कर दिया और हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें उसके पहले बहुत सारे प्लानिंग करनी होती है। एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के टाइम पे हमें कुछ कंसिडरेशन रखनी होती है। फॉर एन एग्जांपल 500 कंप्यूटर है या फिर 500 डिवाइसेस है, तो ऑलवेज हमारी IP की रेंज ही 700 या 1000 की रेंज होनी चाहिए। बिकॉज कभी अगर
कभी अगर एक आध दूसरा डिवाइस या कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल अचानक से नेटवर्क में ज्वाइंट हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क जो है बैठ जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें DHCP करके एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल इसके टेकिंग केयर करता है कि कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस हो, मतलब ऐसे समझते हैं कि हमारे इसमें ऑफिस में मेरा नाम तेजस है, मैं DHCP हूँ, एंड एक कोई तो विशाल या वरुण करके मुझे नाम दिख रहा है, तो वरुण है। तो वरुण एज सुन एज एंट्री करता है अपने नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जब मुझे पता चलता है कि वरुण नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री किया है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिस्ट में, मतलब DHCP ऑलवेज चेक करता है कि मेरे लिस्ट में कितने IP की रेंज हमें अवेलेबल है। अगर मेरे पास अवेलेबल है तो ही मैं उसको एक IP असाइन करूंगा, एंड जब वरुण को एक IP एड्रेस असाइन हो जाएगा, उसके बाद वो सारे सर्वर से डेटा या कम्युनिकेशन, मतलब सारे कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है। तो ये सारा टेकिंग केयर होता है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर जो है ना, वहां पे। ठीक है, फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस, ARP प्रोटोकॉल, IP स्टैक, ये सारे प्रोटोकॉल, मतलब ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, ये सारे मैनेज होते हैं, जहाँ पे राउटर्स कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे कोई भी मानो एक डेटा हमने सेंड किया, एक अपने कंप्यूटर से एक ईमेल भेजा हमने, तो जब ईमेल जाता है तो हमें सिर्फ वो टेक्स्ट फॉर्मेट दिखता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जब वो जो मेल हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, दैट इज अ डेटा। ठीक है, डेटा के साइड में कहाँ से, मतलब कौन से IP एड्रेस से ये डेटा जा रहा है और कौन से IP एड्रेस को जाके मिलने वाला है, मतलब कौन से कंप्यूटर या लैपटॉप से ये डेटा जा रहा है उसका IP एड्रेस, प्लस जहाँ पे सेंड होने वाला है उसका IP एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन भी उस डेटा के साथ अटैच होती है, उसे कहा जाता है कैप्सूल। मतलब जब डेटा ट्रांसमिशन होती है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। तो जब ये डेटा को अदर इंफॉर्मेशन जब अटैच होती है, तब जाके उसका एक कैप्सूल तैयार होता है। वो कैप्सूल जब फिजिकल लेयर पे चली जाती है, मतलब सेंड बटन दबाने के बाद वो डेटा फिजिकल लेयर से चला जाता है बाइनरी फॉर्मेट से, मतलब डेसिमल से वो बाइनरी कन्वर्जन होता है, बाइनरी कन्वर्जन से ही ट्रांसमिशन होता है, इधर लाइट से या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, बट इन द बाइनरी फॉर्मेट। तो जब ये डेटा सेंड होता है तो कहाँ से गया और कहाँ जाना है, ये डेटा जब अटैच होगा उसके बाद फिर फिजिकल लेयर से रिसीवर कंप्यूटर को ये डेटा मिल जाता है। बट ये 7 लेयर फॉलो करके ही होते हैं। आपको 7 मतलब 7th लेयर, मतलब टॉप वाली जो लेयर है वो दिख रही है आपको, उसमें देखो गूगल की एक फ्रेम लगी हुई है, मतलब एक बंदे ने ईमेल का एक बॉक्स पकड़ा हुआ है, दैट मीन्स यू आर एट दिस पोजिशन। बट जब हम एक मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसके बिहाइंड इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये 6 प्रोसेस होती है। ये सारे 6 प्रोसेस से फिर बाद में हमें वो एक डेटा फॉर्मेट में ईमेल या जो डेटा है या एक्सेल फाइल है या फिर वर्ड फाइल है, वो हमें एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में दिखती है। ठीक है, तो कंसिडर रखना ये 7 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में करियर करना चाह रहे हो। अगर ये OSI लेयर आपको नहीं आ रहा है तो आप कभी भी कोई भी नेटवर्किंग फील्ड में काम नहीं कर सकते। ये OSI मॉडल जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है वो मैं बताना चाहूंगा। उसका रीजन ये है, पहले क्या होता था, सिस्को इज टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस कंपनी। हेलो, हेलो, हाँ, Yes, sir. okay. So Cisco is the topmost manufacturer of this company, and there are many Chinese companies are there, like Ruckus is there. Many non-branded companies are there.
But in a past days, what happened is मेरे कंपनी के पास सारे सिस्को डिवाइसेस है. फॉर एन एग्जांपल, अभी जब मेरे सिस्को डिवाइसेस का पूरा स्विचेस, राउटर, ये सारे सिस्को मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, उसके है. और ऑल ऑफ दी सडन क्या हुआ, मार्केट में एक नेटवर्किंग स्विच मेरे को लगाना पड़ रहा है मेरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो क्या हो रहा है कि मुझे एक सस्ता वाला ब्रांड दिख गया. मतलब अभी सिस्को का कॉस्टिंग ज्यादा है, तो मुझे एक सस्ता ब्रांड लेना है, तो मैंने वो स्विच लिया. बट प्रॉब्लम क्या होने लगा, उनका जो सेकंड ब्रांड था, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है वो अलग थे, और सिस्को के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड अलग थे. इसके वजह से क्या हुआ, अगर मेरे कंपनी के साथ कोई और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेरे को कम्युनिकेशन करना है, या मेरा क्लाउड कम्युनिकेशन करना है, तो वो हो नहीं रहा था. क्यों? बिकॉज हर एक का स्टैंडर्ड अलग है, और उसका हर एक का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अलग है. तो ISO स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि लेट ऑल मैन्युफैक्चरर्स फॉलो दिस सेवन लेयर. जैसे कि जहां पे मतलब फिजिकल लेयर पे अगर केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, एयर है, तो यू कैन यूज दिस स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे देखो आर, मतलब फिजिकल लेयर पे देखो एक पट्टी पे लिखा है यहाँ पे RS232, RJ45V, दीज आर दी स्टैंडर्ड्स जिसके इनको कंसिडर करके आपको सारे पोर्ट कम्युनिकेशन करने हैं. जैसे कि ये इथरनेट है, इथरनेट पोर्ट है, तो ये 802.11 पे कॉन्फ़िगर होगा. अभी आप राउटर बना रहे हो, तो आपको IP एड्रेस, R प्रोटोकॉल, ये सारे स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे. फिर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब राउटर टू राउटर डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है, वहां पे SSL मतलब सिक्योर शेल, ये सारे पोर्ट कंसिडर किए जाते हैं. सेशन माने आपका सेशन लेयर पे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट. अभी आप प्रेशर हो, तो इसमें एक एक्नॉलेजमेंट करके एक ये है, जैसे कि मुझे कहाँ जाना है वो पता नहीं है, लेकिन क्या होता है, मेरे पास एड्रेस है, तो जब मैं कुछ फाइल भेज रहा हूँ, तो जब फाइल जाती है उस एड्रेस पे, पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो वो डिवाइस एक एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ मुझे डेटा रिसीव्ड हुआ. फिर वही एक्नॉलेजमेंट लेके वो मेरे मतलब कंप्यूटर या वो जो एप्लीकेशन है वहां तक आता है कि सामने वाले कंप्यूटर को वो एप्लीकेशन या वो डेटा मिल चुका है. फिर लास्ट में होता है कि जैसे कि मिलने के बाद फिर सेकंड होता है कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है. मतलब वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है ARP टेबल में, ARP टेबल बोलते हैं उसमें, कि ये कंप्यूटर का IP एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये है. तो ये सारी चीजें ये ARP टेबल में स्टोर होती है जहाँ पे राउटर होता है. ठीक है. फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन, जहाँ पे ऐसे समझो कि हमें मल्टीपल फाइल्स भेजनी है. ठीक है. तो जब मल्टीपल फाइल भेजी जाती है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि एक साथ भेज दिया तो सब एक साथ जाएगा, कि उसका एक तरीका होगा, या स्टेप बाय स्टेप जाएगा? एनीवन? मैं चैट में देखता हूँ. Sir, sorry for interrupting. The whole screen is not visible to us. Like there are two patches on the screen. Sir, you're on your side. I can't listen to you. ओके, मेरा ऑफ कर देता हूँ ताकि यू विल गेट प्रॉपर. ये अभी दिख रहा है आपको? एक पैच गया है सर, सेकंड अभी भी टॉप वाला आ रहा है. टॉप में है सर. सॉरी, टॉप वन अभी भी है एक साइड में, Behind the राइट top of साइड the में वो screen. गया. ओके, एक सेकेंड. इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा. एक सेकेंड.
अभी तो एक और आ गया राइट में। हाँ हाँ, एक सेकेंड, मैं उसको ये करता हूँ। अभी ठीक है, वो मैंने डाउन कर लिया उसको, ठीक है। और उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ रिमूव करने का, एक सेकेंड। ओके, Yes, अभी Yes, sir. ओके, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मल्टीपल डेटा सेंड कर रहे हो ना, तो उसमें आप एक साथ सब डेटा नहीं सेंड कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अ, आपको भी अगर कोई एक टास्क अगर कॉलेज से दिया जाएगा मल्टीपल टास्क, तो एक बार एक ही टास्क आप कर सकते हो। उसी तरीके से अगर एक सेशन चालू हुआ, एक सेशन माने चालू हो गया, एक फाइल हमने सेंड की, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक फाइल शेयर की, तो एट अ सेम टाइम एक ही फाइल जाएगी। वो कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड फाइल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से उसका एक टेबल बनाया जाता है। यहाँ पे देखना, ये जो आदमी दौड़ते हुए दिख रहे हैं ना, तो वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बंदा ये क्या बोल सकते हैं, ये कबर्ड से एक फाइल निकाल रहा है, कौन सा फाइल सेंड करना है यहाँ पे रख रहा है, फिर एक आदमी लेकर जा रहा है। जब ये आदमी बोलेगा कि हाँ मैंने ये फाइल जगह पे पहुंचा दी, देन सेकंड आदमी वहां से एक फाइल निकलेगा, वो रिटर्न आएगा। सो लाइकवाइज ये कम्युनिकेशन होता है। ये एक आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। बट अगर आपको पैकेट्स या कुछ देखना रहेगा ना, तो देर आर सम टूल्स। अगर कुछ फाइल आप सेंड कर रहे हो ना, तो किस तरीके से ट्रेवल करता है ये पूरे पैकेट्स, वो भी आप देख सकते हो। मतलब आपने लिखा है हेलो तेजस, तो ये हेलो तेजस किस तरीके से ब्रेक होता है बाइनरी में, कैसे एक एक वर्ड एक एक लेटर ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज आप देख सकते हो। उसके एक टूल्स है, वो आपको शेयर करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट, जो एप्लीकेशन लेयर, विच इज जो हम एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे कि आउटलुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो वो हम जो बैठते हैं ना, ये टॉप मतलब 7वां लेयर है ना, वहां पे हम बैठते हैं। जो नॉन टेक्निकल होता है उसे ये पीछे बैकग्राउंड में, मतलब ये जो 6 लेयर है, ये नीचे वाले जो 6 लेयर है, इस ये क्या होता है बैकग्राउंड में, ये कुछ मालूम नहीं रहता है उनको। सिर्फ मेल लॉगिन करो, सेंड करो, दैट्स इट, इतना ही मालूम रहता है। और सेंड भी नहीं होता है तो वो इरिटेट होते हैं, अरे यार नेटवर्क नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे इरिटेशंस वाले कॉल्स भी हमें हैंडल करने पड़ते हैं। तो आपको अगर ये एरर्स या कॉल हैंडल करने, तो आपको ये जो 7 लेयर या 6 लेयर जो है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तब जाके आप आगे काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको बहुत सारा डिफिकल्टीज आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ मोर इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस लग रहा है, तो मैडम के पास से आप नंबर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज आपको ये समझा आपको ओएसआई मॉडल? yes, sir. ओके ओके, सेकंड, ये है नेटवर्किंग करियर पाथ, आपको दिखाना चाहूंगा। हम्म, अभी ये देखा, ये जो है ना, टोटली सिस्को से है। और सिस्को एक ही ऐसी कंपनी है जो ये नेटवर्किंग फील्ड के सर्टिफिकेशन कराती है, ठीक है। अदर देन कोई
कोई भी अगर बोले हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, वो सब गलत और रॉन्ग सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये जो सिस्को एक ही कंपनी ऐसी है जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। इनका जो फर्स्ट जो एंट्री लेवल का जो कोर्स है, जहाँ पे आपको बेसिक सीखने को मिलता है, ये सिस्को सर्टिफिकेशन टेक्नीशियन, मतलब एक बेसिक, जहाँ पे केबल किस तरीके से बनती है, केबल ट्विस्ट क्यों होती है, बाइनरी कन्वर्जन होके उससे 5 वोल्ट पे कैसे किस तरीके से ट्रांसफर होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसमें लाइट ट्रांसमिशन का स्पीड, जो स्पीड काउंट होता है, हम जो स्पीड स्पीड बोलते हैं ना इंटरनेट में, मतलब इंटरनेट स्पीड, नेटवर्क स्पीड जो बोलते हैं, वो नेटवर्क स्पीड माने ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलती है। उसके बाद वाला अपग्रेडेड जो कोर्स आता है, ये आता है जिसमें CCNA, इट इज वेरी 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 बेसिक कोर्स, लेवल 1 इंजीनियर अगर आपको जॉब करना है तो ये सर्टिफिकेशन आपको मस्ट है। इसमें 3 वेरिएंट है, एक सेकेंड ना, इसमें 3 वेरिएंट है। इसके एग्जामिनेशन देने का ये नंबर है 200-301 CCNA, ये एग्जाम कोर्स नंबर है, ठीक है। कभी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो ये नंबर ध्यान चेक करके ही एग्जाम लॉगिन करना, अदरवाइज जिस सेकंड को आप लॉगिन करोगे वो स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सिस्को सर्टिफिकेशन डेव मतलब डिवाइसेस अंडरस्टैंड, मतलब हर एक राउटर एंड स्विच किस तरीके से वर्क होते हैं उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो ये एक कोर्स है उसका, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि मैंने सिस्को से ही सारे सर्टिफिकेशन और सब किया था, ठीक है। फिर आता है सिस्को सर्टिफिकेशन साइबर ऑप्स, जैसे डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है डेवऑप, वैसे ही साइबर ऑप्स, जिसमें मतलब साइबर अटैक्स और ऑपरेशन की टीम, ये साइमल्टेनियसली दोनों भी काम करते हैं। तो ये एक एडिशनल उन्होंने एसोसिएशन में सिस्को ने ऐड किया हुआ है ड्यू टू ये सब अटैक्स एंड वो होने के कारण। उसके बाद आप अपग्रेड करते हो खुद को तो आपको जाना पड़ेगा प्रोफेशनल कोर्स, जहाँ पे देखिए इतने सारे स्टैंडर्ड्स है और एग्जामिनेशंस होती है, CCNA से भी हायर नॉलेज वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है CCNP एंटरप्राइज, जहाँ पे आप पूरा एक बिल्डिंग का पूरा एंटरप्राइज, पूरा नेटवर्क का एक बिल्डिंग का नेटवर्क आप संभाल सकते हो। जैसे कि एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैंने किया था, एक सेकेंड, ये देखना। हाँ, एक 2-3 इमेजेस है वो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इस तरीके से, अभी ये 4 आपको यहाँ पे 4 ही केबल दिख रहे हैं बट ऐसा नहीं है, ये 4 केबल, ये मेन स्विच है जहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे 150, 1000, 2000 केबल राउटर और स्विचेस तक। ये एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पे 48 पोर्ट का कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है जो हमने मतलब मेरी कंपनी ने और मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगेन ये है एक वीडियो, ये सर्वर है, सॉरी ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये डेल का EMC सर्वर, इट्स नॉट अ नॉर्मल सर्वर, ये कंप्यूटर PC, इट इज अ फ्लैट ब्लेड रैक सर्वर बोलते हैं इसको। इसमें रेड बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ये एक रैक है जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसका एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये पूरा नेटवर्क रैक है, ये स्विचेस है, स्विच और पैच पैनल बोला जाता है उसको, ये स्विचेस है, ठीक है। ये उसका फुल इमेज में खत्म हो गया इतने। होप यू अंडरस्टैंड, सॉरी। Yes, sir. ये प्रोफेशनल में जाना चाह रहे हो, जैसे कि लेवल 1 पे काम नहीं करना है, आपको अपग्रेड करना है खुद को, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे बैठना है, लैपटॉप लेना है, केबिन लेके बैठना है, आपके अंडर 10 इंजीनियर्स काम करने चाहिए कंपनी के, तो आपको ये सर्टिफिकेशन मस्ट है, ठीक है। CCNP एंटरप्राइज बोला जाता है, ये एक है जहाँ पे आप पूरा बिल्डिंग नेटवर्किंग का कर सकते हो। सेकेंड CCNA कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, 2 बिल्डिंग के बीच का नेटवर्किंग आपको हैंडल करना होता है,
मतलब जब दो बिल्डिंग के बीच का आप जब कॉन्फ़िगर करना चाहोगे ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। हर एक डीएचसीपी सर्वर देखना पड़ता है, कितने डिवाइसेस है, पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। और सीसीएनपी का एक डेटा सेंटर कोर्स है जहाँ पे आप डेटा सेंटर हैंडल कर सकते हो। डेटा सेंटर ये ऊपर वाले तीनों कोर्सेस से बेस्ट, मतलब टॉप मोस्ट बोल सकते हो। ठीक है, उसको एडिशन करने के लिए, मतलब सिक्योरिटी में एडिशन करने के लिए ये कोर्स एग्जामिनेशन के नंबर्स है। ठीक है, आपको अगर आईएसपी बनना है, जैसे कि टाटा, एयरटेल, ये जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर है, उनका नेटवर्क आर्किटेक्चर या जो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अगर सीखना है तो आपको आईएसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर करना पड़ेगा। देखो, ये जो प्रोफेशनल है ना, वो आप किस फील्ड में जाओगे उसके ऊपर डिफाइन करता है। ये सब कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डेटा सेंटर में जॉब करना जा रहे हो तो डेटा सेंटर का सर्टिफिकेशन लेके बैठ जाओ। आपको साइबर सिक्योरिटी पे जाना है तो सीसीएनपी सिक्योरिटी में जाओ। आप आईएसपी बनना चाह रहे हो, मतलब एयरटेल ऐसे कंपनियों में काम करना चाह रहे हो, तो सर्विस प्रोवाइडर सीखो। और ये साइबर ऑप्स, ये सभी कोर्स का मेन, बट आपको बेसिक आना जरूरी है, तब जाके इसमें साइबर ऑप्स आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाला जो आता है जिसका सैलरी ही अराउंड 1.5 lakhs एंड अबव होता है, वो होता है एक्सपर्ट कोर्स विच इज सीसीआई राउटिंग एंड स्विचिंग। इसमें सिर्फ आपको कोड लिखना रहता है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब आप पूरे इंडिया का नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई अगर इंडिया का कॉन्फ़िगरेशन करना है या वर्ल्ड टू वर्ल्ड, कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन करवानी है आपको, तो ये कोर्स आपको आनी जरूरी है। फिर पूरा वायरलेस फिडिलिटी के साथ है, कोलैबोरेशन, मतलब वही सेम कंट्री टू कंट्री। फिर डेटा सेंटर आता है, मेरे इंडिया का डेटा सेंटर मेरे को हैंडल करना है, यूएस का डेटा सेंटर हैंडल करना है, या गूगल का डेटा सेंटर हैंडल करना है, तो आपको ये सीसीआईई आना जरूरी है। बट डेटा सेंटर ये एग्जाम देने से पहले आपको सीसीएनए और सीसीएनपी का डेटा सेंटर और फिर सीसीआईई का डेटा सेंटर आना जरूरी है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी में भी सेम, फिर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वही एयरटेल वगैरह इंटरनेट वाले जो है सॉरी, तो उनके उन वो फील्ड में अगर काम करना है तो सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर, ये जो है ना, ये है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, बट इसको कंपनी का मतलब कोई भी नेटवर्क किंग माना जाता है, वो होता है आर्किटेक्चर। जिसको ये आर्किटेक्ट, मतलब पूरा नेटवर्किंग का आर्किटेक्ट, जैसे हमारे घर का आर्किटेक्चर होता है कि यहाँ पे फ्लोर पॉट रहेगा, यहाँ पे बेड रहेगा, उसी तरीके से आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि मेरा नेटवर्क जो होगा वो किस तरीके से होगा, जिसमें मेरी सिक्योरिटी होगी, फिर मेरा इजी टू हैंडल होगा, मेरे इंजीनियर्स को काम करते वक्त तकलीफ नहीं होगा, हमारे यूजर्स है उनको काम करते वक्त तकलीफ नहीं होगा। ये सारे कंसिडरेशन करके जब बिफोर जो बनाया जाता है नेटवर्किंग, उसको उसको कहा जाता है आर्किटेक्ट। बट आर्किटेक्ट बनने के लिए भी आपको ये बेसिक, मतलब ये जो प्रीवियस वाले ये जो 3 कोर्सेस है ना, एंट्री, एसोसिएट एंड प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, ये सारे आपको अंडरस्टैंड करने होंगे, तब जाके होता है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशलिस्ट भी है, मतलब ये एक्सपर्ट के बाद एक स्पेशलिस्ट आता है, उसके बाद वाला लास्ट आता है आर्किटेक्ट। ठीक है, सेम है, सिमिलर है ऑलमोस्ट सब में, लेकिन एक ही उसको आपका चॉइस है। एंट्री लेवल का ये कोर्स करना ही पड़ेगा, सीसीएनए एसोसिएट के आपके सारे तीनों आने जरूरी है। फिर प्रोफेशनल से आप कोई भी एक चूज करना चालू कर सकते हो, जैसे डेटा सेंटर में जाना है तो डेटा सेंटर प्रोफेशनल, डेटा सेंटर एक्सपर्ट एंड डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट। किसी को जाना है साइबर सिक्योरिटी में, तो आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इस तरीके से आपका करियर पाथ डिजाइन होता है। ये पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, मैम के साथ मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, इससे ले लेना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, मैं आपको हेल्प यू आउट करूंगा कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। ठीक है, और इट इज ऑल अबाउट करियर पाथ हो गया। आपको एक सिर्फ विजुअल इफेक्ट देना चाह रहा हूँ कि वेयर यू आर। देखो, जहाँ पे फ्रेशर लिखा है ना, वहां पे आप अभी फिलहाल हो, आपको देखो कितना सारा कंपटीशन है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल
CCNA बेसिक कोर्स करके आगे आपको थाउजेंड्स ऑफ ये है, कंपटीशन है आपके लिए। फिर ये पार करके आपको जाना है प्रोफेशनल्स में, मतलब जो मिड वाला जो है ना पार्ट, वहां पे पहुंचना है। एंड देन यू विल बिकम अ एक्सपर्ट, जहाँ पे आप अच्छे लेवल पे पोजीशन, आपका सैलरी अच्छी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट इज होप यू अंडरस्टैंड दिस पिरामिड, बिकॉज ये पिरामिड लेकर ही चलना, आपको करियर बनाने में हेल्प होगा। प्लस इसको फॉलो करोगे ना, आपको कभी भी आपका करियर मतलब अदर वे आउटली नहीं जाएगा, या फिर आप बोर नहीं होगे, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। यू हैव टू गो टू दी एक्सपर्ट लेवल, क्योंकि देखो टोटल आप आज फर्स्ट ईयर में हो, फ्रॉम फर्स्ट ईयर कंसिडर करना 4 साल मुझे कुछ भी अदर थिंग नहीं करनी है। मेरे को एक अभी मतलब आज ही आप इसको चूज करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। इसके लिए मैंने ये स्लाइड भी दिखाई थी आपको, कि इसमें देखो सर्वर साइड में जाना है तो सर्वर साइड ले चूज करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस है, नेटवर्किंग है एंड सिक्योरिटी है। तो ईच एंड एवरी फील्ड अपने अपने में बहुत बहुत पावरफुल है, और हर फील्ड के जो सैलरीज भी है वो भी हायर है। किसी का मत सुनिए कि यार पेमेंट नहीं है IT फील्ड में, ऐसा कोई नहीं है। आप अगर बेसिक कोर्स करके कोई भी कंपनी में ज्वाइन करोगे, ऑब्वियसली आपको सैलरी जो है कम ही मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज ट्राई टू रीच एक्सपर्ट लेवल, सो दैट यू विल गेट हायर सैलरी। क्यों मैं अभी से बोलना चाह रहा हूँ, जब तक आपका ग्रेजुएशन खत्म होगा ना, तब तक आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे, उतना नॉलेज आप ग्रैब कर चुके होंगे, ठीक है। मैंने खुद ने ये किया हुआ है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले मतलब बेसिक कोर्स किए, उसके बाद एक्सपर्ट प्रोफेशनल, देन मैं एक्सपर्ट लेवल पे। आज मुझे नेक्सा शोरूम, मतलब ऑटोमोटिव कंपनी है, उनके पास ये नेक्सा शोरूम सारे होते हैं, तो उनका जितना भी पैन इंडिया का नेटवर्किंग है, उनके कंसल्टेशन के लिए हम लोग जाते हैं। फिर मेरे पास अपोलो क्लिनिक है। फिर आप और भी, और बहुत सारे नाम है जो लिस्ट करूंगा तो बहुत बड़े बड़े कंपनियां है वो भी। टाटा के साथ मैं ऑथराइज चैनल पार्टनर हूँ, टाटा के साथ भी हम लोग काम करते हैं। उनके भी कहीं कहीं नेटवर्किंग सॉल्यूशंस है, वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके साथ टाई अप है, ठीक है। ये पिरामिड याद रखना, ठीक है, हमेशा गाइस। और मिसगाइड कभी मत होना किसी से भी। किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो उससे नॉलेज ना ले फील्ड का। आप कोई भी अच्छा, आपको अच्छा गाइड देखो, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इफ यू वांट, ठीक है, नोट इट डाउन एंड कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। होप यू ऑल एंजॉय माय सेशन। Any doubts, any queries from student, please welcome. If you guys have any doubt or there's something more you want to know, feel free to write it down in the comment box. Yes, yes. कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। या फिर ये मेरा नंबर लेके रख दो, जब भी आपको मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इंटरैक्टिव रहो यार, क्योंकि जब इंटरैक्टिव रहोगे ना, तब जाके आपको कोई तो मार्केट में पूछेगा। अदरवाइज इतना इंटरैक्टिव नहीं रहोगे, यस सर और छोटा कुछ मतलब कुछ बोलोगे नहीं ना, तो आपको कोई मतलब खड़ा भी नहीं करेगा। क्योंकि क्या है, लोगों को समझाना भी पड़ता है कि नेटवर्किंग सर, आप जो अभी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, ये समझाना भी पड़ता है। अगर वो नहीं समझा पाए ना, तो आपको मतलब आई डोंट नो, कोई मतलब कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, कितने भी हायर लेवल का सर्टिफिकेशन कर लो,
आपको कोई भी पूछेगा नहीं, आप बेसिक लेवल हो तो बेसिक लेवल पे ही रहोगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। या प्लीज रिप्लाई और एनीथिंग एल्स मैडम, अगर कुछ रहेगा तो बोल दीजिए। सेशन वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, क्वेरीज है तो बताइए। टाइम कंस्ट्रेंट था, अदरवाइज बहुत सारी चीजें बतानी भी है। तो अगर ये ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो उतना एफर्ट्स अपना बच जाएगा। इट इज एक्चुअली फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो, फील्ड वर्क माने क्या होता है, कोई भी कंपनी जो रहती है, मेरे यहाँ पे भी फील्ड वर्क होते हैं, जो लेवल 1 इंजीनियर का काम रहता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लेट से मेरा एग्जांपल, मेरी कंपनी है आई टेक्नोफिनिक्स सिस्टम्स एंड टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नेक्सा शोरूम के साथ टाई अप है। आप मेरे इंजीनियर हो, मैं आपको सैलरी कर रहा हूँ, ठीक है। बट फील्ड वर्क यानी क्या होता है, आपको नेक्सा के शोरूम में रह के आपको काम करना होता है। आप मेरे प्रीमाइसिस में नहीं रहोगे। जो भी आपका क्वेरीज है या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो मेरी कंपनी सॉल्व करेगी, नेक्सा नहीं। नेक्सा को आई टेक्नोफिनिक्स सर्विस दे रहा है, नेटवर्किंग का या कंप्यूटर रिलेटेड या जो भी सर्वर का, जो भी ये दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो वो सर्विस देने के लिए आप मेरी तरफ से उनके फील्ड में, मतलब नेक्सा के ऑफिस में बैठ के काम करोगे। वो आपका ऑफिस नहीं रहता है, मतलब मेरा आई टेक्नोफिनिक्स का ऑफिस नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड फील्ड वर्क। लोगों को क्या लगता है, हाँ कभी कभी क्या होता है, ये फील्ड वर्क में क्या करता है कंपनियां, आप अगर वहां जगह पे हो, मेरा अंधेरी में एक इंजीनियर बैठता था, बट वो आज अब्सेंट है, तो मैं क्या करूंगा, आपको नेरुल से अंधेरी भेजूंगा। तो ये ट्रैवलिंग थोड़ा इन होता है। आपको 8 घंटे एक जगह पे बैठना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो गारंटी नहीं रहती। दिस इज व्हाट अबाउट द फील्ड वर्क। और जो आपको मतलब एक जगह पे बैठ के जो जॉब रहती है ना, वो इस प्रकार रहती है कि आपको रिमोटली जो काम करने हैं ना, वो वर्क आपको ऑफिस में बैठ के मिलते हैं। बट इन द एट द स्टार्ट ये सारा चीज मत सोचो। फील्ड वर्क तो फील्ड वर्क, बट फील्ड वर्क में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, मैं तो बोलता हूँ 1 साल या 2 साल फील्ड वर्क करो, आपको जो नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस मिलेगा ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। देन आफ्टर यू कैन स्विच। मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छे मैं आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर लेके रख लीजिए। आपको कभी भी मेरे को इस फील्ड में जाना है, आप मेरे को करियर डिजाइन करके दो, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। बट फील्ड वर्क सुन के जॉब इग्नोर करो, ये मत करो। मिल रहा है 1 साल करो, 2 साल करो, 2 साल का एक अच्छे कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो। उसके सर्टिफिकेट के बेस पे और आपका नेक्स्ट, मतलब प्रोफेशनल जो भी आप कोर्सेस करोगे, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी फील्ड वर्क को अगर ये है तो आप मना मत करो। फील्ड वर्क भी ले रहे हो तो वो भी देखना कि वो कंपनी कितनी लेवल है, या फिर कौन से लेवल पे उन लोग काम कर रहे हैं। उस तरह वो सोचोगे तो आपको फील्ड वर्क वर्थ है। अदरवाइज फील्ड वर्क करके भी कोई मतलब नहीं है, वो फिर गधा मजदूरी जैसे उन लोग काम करा के लेते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू गाइस। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आपको अगर कोई अदर फील्ड के लिए कुछ तो लेट मी नो। And I'm not from any I have so it's my job. I want to become a vision to million voice. हाँ,
हाँ, तो I just wanted to become a vision for my young generation. Okay, so here is my vision. आपको अच्छे से सुनना है, और मैंने इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट को किया है गाइड, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी फील्ड पे, मतलब रिलायंस जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, एंड ऑल द बेस्ट। I'd like to thank Tejas sir for taking out his time from his busy schedule and for giving an excellent presentation, making this seminar a very meaningful and interesting one. Thank you so much, sir, for enlightening us with all this knowledge. Thank you, bye.